Hello students, today we are going to discuss types of advances, secured and unsecured. This topic fully covered that lending part. So in case of lending, money is provided on the condition that amount borrowed will be returned along with interest at a future date. Now, what is secured loan and what is unsecured loan? It is the interest rate, here it is written. It is in the interest of bank to recover all the loans with the interest thereon at the due dates. To ensure this, the bank try to obtain security whose value is greater than the loan amount from the potential borrower as backing for the prompt recovery of loans. Such security may be in the form of house, residential flat and landed property like factory, land or plant and machinery, life insurance policies with surrender values, gold ornaments, fixed deposit receipts, receivable vehicle like car, two-wheelers, buses, truck. सिंपली हम लोग अगर लोन लेंगे तो ऑब्वियसली बैंक को कुछ मॉर्गेज देना पड़ेगा. दैट मॉर्गेज शुड बी दैट हाउस, रेसिडेंशियल फ्लैट. फॉर एग्जांपल तुमने अगर लोन लेने के लिए जाओगे, तुम बैंक पे जाओगे, उस समय बैंक तुमसे जो मॉर्गेज तुम्हारा देना पड़ेगा वो मॉर्गेज है ऑब्वियसली हाउस, रेसिडेंशियल फ्लैट. कुछ तो बैंक के पास जमा ही करना पड़ेगा, नहीं तो बैंक किस गारंटी के वजह से तुम्हें वो पैसा देगा. ऑब्वियसली वो लोन देगा, तो लोन देने के लिए तो ये गारंटर चाहिए ना पीछे से. तो गारंटी यही कि अगर तुम लोन नहीं चुकाओगे उस समय रेसिडेंशियल फ्लैट तुम्हारा जो रहेगा, जो तुम्हारा जो हाउस रहेगा, तुम्हारा जो कार रहेगा, तुम्हारा जो प्लांट एंड मशीनरी रहेगा, सब कुछ बैंक का हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड एज सिक्योर्ड बैंक लोन. नाउ व्हाट इज अनसिक्योर्ड बैंक लोन? Unsecured bank loans, as the name itself suggests, are loans granted by the bank without the backing of any physical securities. ये लाइन को याद रखो, without the backing of any physical securities. ये पिछले पहले जो मैंने बोला था सिक्योर्ड लोन पे प्लांट एंड मशीनरी ये बैकिंग कर रहा है, वो बैकिंग नहीं रहेगा. Either primary or collateral. These loans are given to those borrowers who do not have any securities एक्सेप्टेबल टू द बैंक. यानी जिसका कोई भी सिक्योरिटीज नहीं है उसको अनसिक्योर्ड लोन प्रोवाइड करेगा. ठीक है, एक्सेप्टेबल टू द बैंक एंड हुज कंसीडर क्रेडिट वर्दी फॉर द अमाउंट ऑफ लोन. एन अनसिक्योर्ड लोन इज मोर रिस्की फॉर ए बैंक इफ द बोरोवर फेल्स टू पे द ड्यूज मीन्स दैट लोन द बैंक हैज नो सिक्योरिटी टू फॉल द बैक अपॉन फॉर रिकवरी इट्स ड्यूज. ऑब्वियसली ये तो होगा ही होगा. इसलिए पहले तो हम लोगों का प्लांट एंड मशीनरी था, फिक्स डिपॉजिट था, ये था, बैंक उसको बैक कर रहा था. अगर तुम पैसा नहीं दोगे तो बैंक उसको ले लेगा. तो इस जगह में तो अनसिक्योर्ड लोन में तो ये चीज़ नहीं है. सो ए बैंक ग्रांट अनसिक्योर्ड लोन्स ओनली टू ए पर्सन फॉर वेरी गुड क्रेडिट रेटिंग विथ गुड ट्रैक रिकॉर्ड and steady income sufficient enough to repay the loan. The potential borrower existing loans also is an important point to consider. Okay, next देखो how many secured loans are there. next point मैं इस जगह में चला जाऊंगा. how many secured loans will be there? loan against gold पहला secured loan है. द मोस्ट पॉपुलर टाइप्स ऑफ सिक्योर्ड लोन हम लोग आजकल नाम जानते हैं ना, तो मुरुगप्पा गोल्ड लोन लाइक दिस. द मोस्ट पॉपुलर टाइप्स ऑफ सिक्योर्ड लोन इन इंडिया इज गोल्ड लोन. अपार्ट फ्रॉम बैंक ए नंबर ऑफ NBFCs. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NBFC? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑल्सो compete with the banks. The banks oblique NBFC employ goldsmiths as the retainer to verify the gold purity and value of the gold brought by their clients. RBI had imposed a gold
a loan to value cap for 60% for the gold loan companies, though it was not made mandatory for banks. Typically, the most public sector banks maintain to loan to the value ratio of 70%, while it is higher for some private sector lenders. Loan to value means the amount here, loan to value, okay, that loan to value means the amount of loan that can be granted against the value of the asset. यानी value of the asset is 1 lakh, उसका 70% तुम्हारा लोन प्रोवाइड किया जाएगा. यानी तुम्हारे पास जो एसेट है उसका वैल्यू अगर 1 लाख है, उसका 70% तुम्हारा लोन प्रोवाइड किया जाएगा, वो बैंक प्रोवाइड करेगा. लोन टू वैल्यू मीन्स द रेशियो ऑफ 70%, वाइल इट इज़ हायर सम प्राइवेट सेक्टर लेंडर्स. प्राइवेट सेक्टर बैंक कभी कभी वो थोड़ा सा ज़्यादा देता है. लोन टू वैल्यू मीन्स द अमाउंट ऑफ लोन दैट कैन बी ग्रांटेड अगेंस्ट द वैल्यू ऑफ द एसेट. इन केस ऑफ गोल्ड, ये इन केस ऑफ गोल्ड होगा तो वैल्यू ऑफ द एसेट यानी तुम्हारा गोल्ड का प्राइस अगर 1 लाख रुपया होगा, उसका 70% यानी 70,000 तुम्हें लोन प्रोवाइड किया जाएगा. ओके, नेक्स्ट. जनरली द इंटरेस्ट रेट बिटवीन 12 to 15% अंडर गोल्ड लोन. नेक्स्ट, लोन अगेंस्ट इंश्योरेंस पॉलिसीज. हम लोग जानते हैं कि LIC का नाम हम लोग ने बहुत बार सुना है घर में. LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. इंश्योरेंस पॉलिसीज आर वेल नोन एज वेरी यूजफुल सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वन फैमिलीज फाइनेंशियल वेलफेयर. इन टाइम्स ऑफ नीड द पॉलिसी होल्डर कैन अवेल लोन्स अगेंस्ट देयर पॉलिसीज दैट हैव एक्वायर्ड सरेंडर वैल्यू. That surrender value, the policies acquired savings surrender values. The policy acquired surrender values after premium are paid up to at least 3 years. Life sanction loan up to a certain percent, generally up to 90% of the surrender values. Bank also have surrender procedure and guidelines for sanctioning loan against insurance policies. The lender gets the LIC policy assigned to itself by the policy holder as security, so that in case of the loan is not repaid, the lender can always surrender the policy and close the loan account from the proceeds from the surrender policy. सिंपल बात, LIC के ऊपर जो लोन प्रोवाइड किया जाएगा उसका सिक्योरिटी थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा. नेक्स्ट, लोन अगेंस्ट बैंक फिक्स डिपॉजिट. अगर तुम्हारा कोई फिक्स डिपॉजिट बैंक का रहा, वो फिक्स डिपॉजिट को तुम बैंक में सरेंडर करके उसके ऊपर लोन ले सकते हो. डिपॉजिटर्स डिपॉजिट देयर सेविंग्स इन बैंक इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपॉजिट अकाउंट डिपेंडिंग अपॉन देयर कैश फ्लोज नीड्स इन फ्यूचर. However, due to some unexpected expenses which the depositors have to meet, they may think of encashing their term deposits before maturity. A term deposit is a contract between depositor and the bank for keeping the deposits in the bank for a predetermined term, earning them interest on predetermined rates. Okay, so this is the loan for a loan against bank fixed deposit. Next, housing loan. Yes, there is an acute, आजकल ये बहुत चल रहा है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, बहुत सारे कंपनीज चलाया, और जो बिग सिटीज लाइक KDMC मीन्स कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई. ये के को मैं किस लिए, कोलकाता तो हम लोग जानते हैं कि एक बिग सिटी है, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, ये चारों सिटी में ये हाउसिंग लोन का जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा रहता है. मैक्सिमम जगह तो नहीं है, इसलिए हाउसिंग लोन ले लेता है उस जगह में जो नौकरी करता है. सो देयर इज़ एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग इन द कंट्री एंड एवरी सिटीजन ड्रीम्स ऑफ owning a house. That's why in his lifetime
That's why the RBI also encourage the bank to lend to the housing sector because of the social benefits angle by including housing loans as one of the priority sector advances. Okay, as per the RBI guidelines, every bank has to lend 40% of their total advances as a priority sector. That means banks अपना 100 रुपया से 40 रुपया ये हाउसिंग सेक्टर के लिए अलग से रखते हैं. सो बैंक गिव हाउसिंग लोन्स फॉर परचेज ऑफ प्लॉट एंड बिल्ड ए हाउस देयर ऑन और टू परचेज एन एग्जिस्टिंग हाउस फ्लैट और परचेज एन फ्लैट इन द बिल्ड नाउ. ओके, सो ये हाउसिंग लोन का एक मामला है. सो टेन्यूर, द टेन्यूर ऑफ द लोन्स, the number of years required to repay the loan can be fixed anywhere up to 25 years depending upon the surplus of disposal income available to the borrower for repayment of loan. 25 years तक ये ले लेता है हाउसिंग लोन कोई भी रिपे करने के लिए. Interest charged to the loan may be fixed rate basis when the rate remain the same during the entire duration of loan. Floating rate basis, देखो फिक्स्ड मैंने बोला और फ्लोटिंग मैंने बोला. फिक्स्ड यानी हमेशा फिक्स्ड रहेगा कि 8%, 12%, ये फिक्स्ड रहेगा साल भर 25 ईयर्स के लिए. फ्लोटिंग रेट मीन्स इंटरेस्ट रेट विल बी पीरियडिकली रीसेट एज ए प्रीडिटरमाइंड मार्जिन और ए प्री एग्रीड इंडेक्स लाइक द बैंक्स बेस रेट और द RBI रेपो रेट और मीब और मुंबई इंटर बैंक ऑफिशियल रेट. इसको इतना मत समझो, यही समझो कि फ्लोटिंग रेट बेसिस मीन्स इसका फ्लक्चुएटिंग होता है इंटरेस्ट. 8% भी चलाते हैं, 12% भी चलाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर RBI रूल्स एंड रेगुलेशन. तुम लोगों को सिर्फ यही याद रखना है, फिक्स्ड रेट बेसिस में एंड फ्लोटिंग रेट बेसिस में हाउसिंग लोन प्रोवाइड किया जाता है. ओके, सो ये चला आया दैट लोन्स अगेंस्ट लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज. नेक्स्ट, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज, शेयर एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड. शेयर खरीद के भी हम लोग सिक्योरिटीज़ का मतलब है शेयर म्यूचुअल फंड्स, ये इसको हम लोग सिक्योरिटीज़ के अंदर चलाए लेके आएंगे. इसको अगर मैंने एक शेयर और म्यूचुअल फंड खरीदा, उस शेयर और म्यूचुअल फंड को बैंक में जाके जमा करके भी हम लोग लोन ले सकते हैं. ये इसके बारे में ये बोला है. नेक्स्ट, व्हीकल लोन्स. ऑब्वियसली व्हीकल लोन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट व्हीकल लोन्स. अगर तुम एक व्हीकल परचेज करते हो, जैसे कि तुमने सोचा कि तुमने एक बाइक खरीदोगे, तुम एक बड़ा सा एक बाइक खरीदोगे, अच्छा सुंदर दिखने में से, हायाबुसा समझ लो, एक खरीद ले. अगर तुम ये बाइक खरीदोगे, ऑब्वियसली उस बाइक के लिए तुम्हारे पास अभी सफिशिएंट पैसा अगर नहीं है, तुम लोन ले सकते हो, बैंक तुम्हें लोन प्रोवाइड करेगा. उस समय क्या होगा, उस बाइक का जो ओनर है उसको बैंक उसका ओनरशिप ले लेगा जब तक तुम उस बाइक का जो लोन है उसको रिपे नहीं करते हो. तो ये व्हीकल लोन्स में ये दिखा देता है, ये सिक्योर्ड है, क्योंकि ये तो पैसा अगर मिस भी हो जाएगा तो उस समय तो बाइक तो रहेगा ना. तो लोन फॉर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, बैंक ग्रांट्स क्रेडिट एक्सपोर्ट बोथ प्री शिफ्ट एंड पोस्ट शिफ्ट स्टेजेस. एक्सपोर्ट फिनेंस प्रोवाइड करता है और इम्पोर्ट फिनेंस भी प्रोवाइड करता है बैंक. ओके, ये चीज़ याद रखना, इसका इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना पहले जैसा था. नेक्स्ट दिन हम लोग टाइप्स ऑफ अनसिक्योर्ड लोन्स के ऊपर बात करेंगे. सो आज तक आज का जो क्लास है, आज तक जो मैंने क्लास किया, तो उसके क्लास को थोड़ा सा रिवाइंड करो अच्छी तरह से. और आज का क्लास इधर पे ही ख़त्म होता है. नेक्स्ट दिन हम लोग टाइप्स ऑफ अनसिक्योर्ड लोन के ऊपर बात करेंगे. ओके, बाय.